सुप्रभात बच्चों, नमस्कार. Good morning children, how are you all? Hope you all are fine and safe. So हम लोगों को 26 से लेकर 29 तक हम लोगों को यूनिट टेस्ट 1 है. Okay, so we are having the unit test from 26th to 29th. Okay children, so our exam is on 29th. Okay children, so for this today I am going to give the portion and blueprint as well as revision also. Okay children, so come today we will see the unit test 1 portion, blueprint and revision. Okay children, so everyone write this portion blueprint in the classwork notebook. Okay, अब चलिए हम लोग देखते हैं पोर्शन और ब्लूप्रिंट. पोर्शन हम लोगों को पोर्शन है पार्ट 1, 2, 3. एक जो है राख की रस्सी, दूसरा जो पार्ट है वो है फसलों का त्योहार और तीसरा जो पार्ट है वो है खिलौने वाला. ओके, फर्स्ट लेसन वी आर हैविंग राख की रस्सी, सेकेंड चैप्टर वी आर हैविंग फसलों का त्योहार एंड थर्ड चैप्टर वी आर हैविंग दैट वन इज खिलौने वाला. ओके चिल्ड्रन, सो दिस टेस्ट इज फॉर 20 मार्क्स. हम लोगों को ये जो टेस्ट है ये 20 मार्क के लिए है. पहले इसमें जो हम लोग पिछली बार लास्ट एनुअल एग्जाम में जैसा मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया था उसी के हिसाब से मैंने बनाया था. सो प्रीवियस ईयर when you are in 4th standard for annual exam, how I made the blueprint like that only here also I did. First Roman number is comprehension. So I am going to give one passage. From that you have to read the passage and write the answers. Next, Roman number 2, grammar. Grammar we are having 6 marks. In that the grammar portion will be from the book itself only, which means it comes from the lesson number 1, lesson number 2, lesson number 3. That one is we are having Bhasha evam Vyakaran in the classwork notebook. Already I had given. So in that opposite words are there, Vachan is there, and the next what are the Bhasha evam Vyakaran will come in these 3 lessons. No, that one alone you learn. Okay, like synonyms, samanardhi shabd is there. Okay children, next Roman number 3, literature. Literature means this one, it is from book. That long answer questions and short answer questions, that one is it will come for 8 marks. So total we are having 20 marks. Okay children, so come we'll see the portion and we'll see the revision. Okay, so first I am going to give the revision on long answer questions. So दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पहले हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे लिटरेचर, फिर उसके बाद हम लोग ग्रामर में आएंगे. ओके, सो कॉम्प्रहेंशन आपको पता है मैं हम लोग कैसे करते हैं, तो पैसेज में प्रेजेंट करती हूँ और मैं पढ़ के सुनाती हूँ और नीचे जो प्रश्न देते हैं आपको ढूंढकर लिखना है. सो how we did in last year. So I am going to present one passage. So from the read the passage, I am only going to read that one, and the next what are the questions are giving related from the passage, you have to find the answer and write. Okay, so this time it is coming from the book itself only. That one maybe it can come from the first lesson or otherwise second lesson. Okay, so first or second lesson, one passage, one small passage I am going to ask. So that's why do the reading practice of the first lesson and second lesson also. So चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न. हम लोगों ने रिवीजन किया है लघु उत्तरीय प्रश्न फ्रॉम फर्स्ट लेसन. जब हम लोगों को ऑनलाइन क्लास था तो उसमें मैम ने लिया था ना आप लोगों को. यस, सो पहला जो प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, लोम्पोगार की चिंता का विषय क्या था? क्या था? यस, एवरीवन नो दिस आंसर, आप सभी को आता है. सो लोम्पोगार की चिंता का विषय उसके बेटे का भोलापन था. उसमें होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी. लोम्पोगार को लगता था कि उसके बिना उसके बेटे का जीवन बहुत कठिनाई से बीतेगा. So why this Lompogar is worrying? What is the reason? So because Lompogar's son, he is
very innocent. He is not at all having like as a cleverness. Okay, so that one he is worrying very much after me how he is going to live. So after me maybe he is going to fall in so many troubles, like that always that worry this Lompogar is having. Okay children, तो चलिए मेरे साथ सब लोग दोबारा आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। लोम्पोगार की चिंता का विषय क्या था? उत्तर, लोम्पोगार की चिंता का विषय उसके बेटे का भोलापन था। उसमें होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी। लोम्पोगार को लगता था कि उसके बिना उसके बेटे का जीवन बहुत कठिनाई से बीतेगा। अगेन, लोम्पोगार की चिंता का विषय क्या था? उत्तर, लोम्पोगार की चिंता का विषय उसके बेटे का भोलापन था। उसमें होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी। लोम्पोगार को लगता था कि उसके बिना उसके बेटे का जीवन बहुत कठिनाई से बीतेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दिस वन आल्सो यू नो। खेती और फसलों से जुड़े कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ। सो रिलेटेड ऑफ द फेस्टिवल्स एंड रिलेटेड ऑफ द related of the crops and related of the fields and farms, what are the famous festivals are there? So you write the names of the festivals. So what are the festivals? Crop festivals. What are the festivals we are having? What are the festivals we are celebrating in our country? Yes, Pongal, Makar Sankranti, Lodi, Bihu, Patang festival, Onam. Okay, these and all are the त्योहार names, festival names. Okay. उत्तर, खेती और फसलों से जुड़े कुछ त्योहार है मकर संक्रांति या तिल संक्रांति. So this one we can call this तिल संक्रांति or मकर संक्रांति. It is used to call UP Bihar side. Okay. So Bihu in Assam, Onam in Kerala, Pongal in Tamil Nadu, Sarhul in Jharkhand, Lohdi in where? Punjab. Bhugutiya is that Uttarakhand that side. तथा पतंग का पर्व. So this one पतंग का पर्व in Gujarat. Okay children. So everyone repeat with me. खेती और फसलों से जुड़े कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ. उत्तर, खेती और फसलों से जुड़े कुछ त्योहार है मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, बिहू, ओणम, पोंगल, सरहुल, लोहड़ी, घुघुतिया तथा पतंग का पर्व आदि. फिर से, खेती और फसलों से जुड़े कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ. उत्तर, खेती
और फसलों से जुड़े कुछ त्योहार है मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, बिहू, ओणम, पोंगल, सरहुल, लोहड़ी, घुघुतिया तथा पतंग का पर्व आदि। वन मोर टाइम, खेती और फसलों से जुड़े कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ। उत्तर, खेती और फसलों से जुड़े कुछ त्योहार है मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, बिहू, ओणम, पोंगल, सरहुल, लोहड़ी, घुघुतिया तथा पतंग का पर्व आदि। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, लड़की ने कितने बार लोम्पोगार के बेटे की सहायता की? That girl, how many times she did the help of Lompogar's son? How many times she did the help? Yes. So लड़की ने 2 बार लोम्पोगार के बेटे की सहायता की। फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने भेड़ों के बाल बेचकर उसे 100 बोरे जौ दिलवाए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेचकर 100 बोरे जौ खरीदकर उसकी सहायता की। ओके, सो दिस इज द आंसर। कम विल सी। लड़की ने 2 बार लोम्पोगार की बेटे की सहायता की। शी डिड द हेल्प फॉर 2 टाइम्स। पहली बार, फर्स्ट टाइम, उसने भेड़ों के बाल बेचकर उसे 100 बोरे जौ दिलवाए। फर्स्ट टाइम शी हेल्प, लाइक हाउ शी डिड द हेल्प, शी सोल्ड द sheep of the wool. Okay, and the next, she purchased the 100 bags of jaw grains and she gave to him. Next, second time, again दूसरी बार भेड़ों के सींग बेचकर 100 बोरे जौ खरीदकर उसकी सहायता की। Second time, again she sold the sheep of the horns. Okay, so after that, after selling, money will get. Now with that, she purchased the 100 bags of jaw grains and she gave to Lompogar's son. Like this, she helped. Okay, so that is the answer. लड़की ने, everyone repeat with me, कितनी बार लोम्पोगार के बेटे की सहायता की? उत्तर, लड़की ने 2 बार लोम्पोगार के बेटे की सहायता की। पहली बार उसने भेड़ों के बाल बेचकर उसे 100 बोरे जौ दिलवाए। दूसरी बार भेड़ों के सींग बेचकर 100 बोरे जौ खरीदकर उसकी सहायता की। फोर्थ क्वेश्चन, कविता में किन किन खिलौनों के नाम आए हैं? So this one is from खिलौने वाला. So in that poem, what are the toy names are came? So what are the toy names are came? तोता, parrot, रेलगाड़ी, train, and the next motor गाड़ी, car, city, whistle, and the next doll, गुड़िया. After that, small tea set, and the next bow and arrow. After that, one sword. Okay, so these are the names are came in the पोयम खिलौने वाला. पिंजरे में बंद तोता, एंड नेक्स्ट छोटी सी मोटर गाड़ी, सीटी, रेलगाड़ी, गुड़िया, छोटा सा टी सेट, आफ्टर दैट धनुष बाण, छोटी सी तलवार. ओके चिल्ड्रन, सो दीज नेम्स यू हैव टू डू द प्रैक्टिस नाइसली. ओके, कम विल रीड द फोर्थ क्वेश्चन. उत्तर, कविता में पिंजरे में बंद तोता, गेंद,
छोटी सी मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी वाली रेल, गुड़िया, छोटा सा टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, छोटी सी तलवार आदि नाम आए हैं. ओके, सो कम रिपीट विथ मी. फोर्थ क्वेश्चन, कविता में किन किन खिलौनों के नाम आए हैं? उत्तर, कविता में पिंजड़े में बंद तोता, गेंद, छोटी सी मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी वाली रेल, गुड़िया, छोटा सा टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, छोटी सी तलवार आदि नाम आए हैं. वन मोर टाइम. कविता में किन किन खिलौनों के नाम आए हैं? उत्तर, कविता में पिंजड़े में बंद तोता, गेंद, छोटी सी मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी वाली रेल, गुड़िया, छोटा सा टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, छोटी सी तलवार आदि नाम आए हैं. फिर से अगेन, कविता में किन किन खिलौनों के नाम आए हैं? उत्तर, कविता में पिंजड़े में बंद तोता, गेंद, छोटी सी मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी वाली रेल, गुड़िया, छोटा सा टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, छोटी सी तलवार आदि नाम आए हैं. Okay children, these 4 question and answers learn thoroughly. In this already you had learned 2 question and answers. Remaining 2 are there. Along with these 2, in the short answers, very short answers are also there. Okay. For each lesson 3 or 4 short answers, very short answers, Atilagu Uttariya Prashna is there. So that one also you learn. Okay children. Now come, we'll see the grammar. अब चलिए हम लोग देखते हैं व्याकरण को. व्याकरण में पहला जो है वो है विलोम शब्द. आप सभी को पता है विलोम शब्द, है ना बच्चों? यस, बहुत इजी है ना. समस्या, समाधान, दुखी, सुखी, असंभव, संभव, पहनना, उतारना, गंवाए, पाए, लंबी, छोटी. वन मोर टाइम. समस्या, समाधान, दुखी, सुखी, असंभव, संभव, पहनना, उतारना, गंवाए, पाए, लंबी, छोटी. अगेन, समस्या, समाधान, दुखी, सुखी, असंभव, संभव, पहनना, उतारना, गंवाए, पाए, लंबी, छोटी. Okay, do the practice nicely this विलोम शब्द. Next, रोमन नंबर 3. नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए. राइट द सिनोनिम्स. सो आपको पता है सूरज, रवि, दिनकर. So 2 words, but here I had given only 1 word. So do the practice nicely on it. Okay, only 1 word has to write. No need to write the 2 words. Okay. So first one is सूरज, रवि, सफेद, श्वेत. सफेद means white. श्वेत also white only. कतार, पंक्ति. That row will be there, no? That one कतार, पंक्ति. Both we can call. इकट्ठा, gather, एकत्र, gather only. त्योहार, festival, पर्व, festival. जंगल, forest, you know this thing, one, forest. Okay, so everyone repeat with me ma. सूरज, रवि, सफेद, श्वेत,
कतार, पंक्ति, इकट्ठा, एकत्र, त्योहार, पर्व, जंगल, वन. फिर से सूरज, रवि. Do the practice of spellings also. Write and do the practice. सूरज, रवि, सफेद, श्वेत, कतार, पंक्ति, इकट्ठा, एकत्र, त्योहार, पर्व, जंगल, वन. Again, सूरज, रवि, सफेद, श्वेत, कतार, पंक्ति, इकट्ठा, एकत्र, त्योहार, पर्व, जंगल, वन. Okay, children. So learn nicely these synonyms and opposite words. For you it is easy. Already you had learned previously also. Okay, children. Do the writing practice of what are the hard words you are feeling. Write for 2 times. So you can able to write without spelling mistakes in exam. Okay, children. We'll meet in the next session. So before that, today we are having online session, so everyone join sharply at 12 p.m. Again we'll do the reading practice of the second chapter and third chapter question and answers. Okay children. So thank you all of you. धन्यवाद बच्चों. हम लोग मिलते हैं अगली सेशन में. Thank you all of you.